بتائیں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 40واں اجلاس عام انتخابات پر پولیس انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا پنجاب بھر میں پرامن ماحول میں عام انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا۔ چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب انتظامیہ اور فیلڈ فارمیشن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نگراں حکومت نے قومی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ ووٹرز نے پرامن ماحول میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ ووٹرز نے آزادانہ ووٹنگ سے اپنے نمائندے منتخب کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے الحمدللہ اس میں سرخرو ہیں۔ عوامی ریلیف کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اجلاس میں پنجاب حکومت کا اسموگ میں کمی کے لیے بڑا اقدام۔ 10,000 طلبہ و طالبات کو آسان شرائط پر بلا سود الیکٹرک بائکس دینے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب بینک کے تعاون سے 10,000 الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ اجلاس میں پنجاب چیریٹی کمیشن کی ایپلیٹ کمیٹی کی تشکیل کی منظوری بھی دی گئی۔ بزنس سہولت ٹینشن سینٹرز کے لیے فنڈز کے اجراء کی منظوری دی گئی۔ بہاولپور، لاہور اور ملتان میں ڈرگ کورٹ کے چیئرپرسن کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 40واں اجلاس ہوا۔ عام انتخابات پر پولیس انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا پنجاب بھر میں پرامن ماحول میں عام انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب انتظامیہ اور فیلڈ فارمیشنز کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نگراں حکومت نے قومی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ بات کریں گے ملتان این 148 کے نظر ثانی شدہ فارم 47 دوبارہ جاری اور جیتنے والے سابق وزیر اعظم کے ووٹوں کی لیڈ مزید کم ہو گئی ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی کی لیڈ کم ہو کر 104 ووٹ تک آ گئی ہے۔ نئے فارم کے مطابق سابق وزیر اعظم نے 68,049 ووٹ حاصل کیے ہیں اور مخالف آزاد امیدوار تیمور ملک کے ووٹ 67,955 ہو گئے ہیں۔ نئے فارم پر امیدوار تیمور ملک کا حیرت کا اظہار۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے قاسم گیلانی کا بھی نئے فارم پر حیرت کا اظہار سامنے آیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان این 148 کا نظر ثانی شدہ فارم 47 دوبارہ جاری، جیتنے والے سابق وزیر اعظم کے ووٹوں کی لیڈ مزید کم ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مہر عمران سے۔ جی مہر عمران، اپڈیٹ کیجئے گا، یوسف رضا گیلانی کی لیڈ کم ہو گئی ہے، 104 تک پہنچ گئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کہ جو الیکشن کے حوالے سے جو رزلٹ جیسے اناؤنس ہونے کا سلسلہ جاری ہوا ملتان سمیت پورے جنوبی پنجاب میں، روز کے جو فارم 47 تھے جس میں مکمل جو اس حلقے کا جو رزلٹ بتایا جاتا تھا، تو اس میں جو ہے بہت زیادہ شکایات سامنے آئیں اور اس میں سب سے بڑی جو ہم بتائیں کہ ملتان کا این 148 اس وقت جو ہے وہ سر فہرست ہے، جس میں آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں بیرسٹر تیمور مہے۔ انہوں نے باقاعدہ درخواست بھی دائر کر رکھی ہے، پہلے آر او کو دی تھی، آر او نے وہ درخواست خارج کر دی تھی، دوبارہ گنتی کی یہ درخواست تھی، پھر جو ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور کل اس پہ تفصیلی گفتگو تفصیلی دلائل ہوئے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس میں آج آر او نے ایک فارم 47 جاری کی ہے جو کہ نظر ثانی فارم 47 تھا، جس میں سید یوسف رضا گیلانی حلقہ 148 سے جو انہوں نے 293 ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیتے تھے، آج کے نئے فارم 47 کے مطابق وہ 104 ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیتے ہیں، ان کی لیڈ جیتنے کی کم ہوئی ہے۔ تو یہ نظر ثانی فارم جیسے ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوا تو اس کے بعد تیمور مہے اور قاسم گیلانی کی جانب سے جو ہے وہ حیرت کا وہ کیا گیا۔ انہوں نے ٹویٹ بھی کی کہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی لیڈ تو زیادہ تھی۔ تاہم دوسری جانب ہم بتائیں جنوبی پنجاب میں اس وقت 46 امیدوار ہیں ہارنے والے، جو کہ مختلف آزاد امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی کچھ امیدوار شامل ہیں جن کا یہ انہوں نے درخواست کی ہے اور جنہوں نے کہا عدالت میں کہ وہ جیتے ہیں۔ فارم 45 جو ان کے پاس موجود ہیں ان میں وہ جیت چکے ہیں، جبکہ فارم 47 جب ایشو کیا گیا ہے، جاری کیا گیا ہے، کہ اس میں وہ ہار چکے ہیں۔ اگر میں ان امیدواروں کے نام بتاتا چلوں تو سب سے پہلے ملتان کے حلقہ 148 کی بات کریں تو وہاں بیرسٹر تیمور مہے نے یوسف رضا گیلانی کی جیت کو چیلنج کیا ہوا ہے اور انہوں نے دوبارہ گنتی کی بھی درخواست دائر کر رکھی ہے۔
इसके अलावा दीगर अगर उम्मीदवारों की हम बात करें तो एक लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है उन 46 उम्मीदवारों की, जिसमें पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं डीजी खान हल्का 186 से मार्सिजाद सेना, इन्होंने आज़ाद मुल्तान बेंच से रजू कर रखा है। इसी तरह 290 हल्का से डीजी खान के सरदार मोहिउद्दीन खोस हैं, इन्होंने भी अदालत में एक पिटीशन दायर कर रखी है। 291 डीजी खान से फ़हीम सईद चंगवानी हैं, इन्होंने भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रखा है। इसके साथ जो दीगर हैं 287 पीटीए के उम्मीदवार अखलाक अहमद बडानी हैं, फरहत अब्बास हैं, इसके साथ दीगर जो शामिल हैं सुल्तान बुखारी मलिक साहब इकबाल हैं, बासिर सुल्तान बुखारी हैं और इसके साथ जाम मोहम्मद यूनिस समेत दीगर उम्मीदवार हैं। इन्होंने हाई कोर्ट्स में पिटीशन दायर कर रखी हैं। इनका ये कहना है कि फॉर्म 47 और 45 के दरमियान मुताबिकत नहीं है, इसलिए दोबारा गिनती भी होनी चाहिए और जो गजटेड नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का फौरी तौर पर रोकना चाहिए ताकि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं अपने ओहदे पर हलफ ना ले सके। ये तमाम तर जो 46 दरखास्तों पर बाकायदा तौर पर दलाल भी मुतला के मुकम्मल हो चुके हुए हैं। अब फैसला आना जो है वो बाकी है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने इस केस पर जो है वो फैसला महफूज कर रखा हुआ है। जैसे ही फैसला सुनाएगा सामने आएगा तो इस हवाले से मजीद भी आगाह करते रहेंगे। जी माहिर इमरान, ये भी बताइएगा जो फैसला है वो कब तक मुतवक्किल है कि आ जाएगा? आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में NA-148 का नजरसानी शुदा फॉर्म 47 दोबारा जारी। जीतने वाले साबिक वजीर आजम के वोटों की लीड मजीद कम हो गई। नए फॉर्म 47 में यूसुफ रजा गिलानी की लीड कम होकर 104 वोट तक आ गई। नए फॉर्म के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने 68,059 वोट लिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच पर 5 केसेस में इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से चैलेंज किया गया। जस्टिस शकील अहमद ने आज PP 243 से खतीजा खानिम केस की समाअत की है। 4 केसेस गुज़िश्ता रोज रिटर्निंग ऑफिसर्स को जवाब तलब के लिए भिजवाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, इंतखाबात के बाद जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच पर कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके रिजल्ट्स जो है फॉर्म 47 नहीं बनाए गए। इस हवाले से 5 केसेस अब तक जो आज तक समाअत भी हो चुकी है और डायरी ब्रांच में भी डायरी लगे हैं, उनकी हम तफसीलात आपको दे देते हैं। NA-16A4 से जो है एजाज गड्डन, NA-168 से समीउल्लाह चौधरी, NA-169 से राजा सलीम, PP-253 से असगर जोया, PP-243 से खतीजा खानम। बावल नगर की सीट है। ये 5 केसेस ऐसे हैं जिनकी समाअत हो चुकी है और इन केसेस को 15 फरवरी के लिए लगा दिया गया है। 15 फरवरी को क्या होगा इस हवाले से 2 केसेस के वकील हैं मखदूम कलीमुल्लाह हाशमी, उनसे जानते हैं। जी जरा बताइएगा। जी, इसमें हमारी जो कंटेंशन थी, क्योंकि कानून के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है जब ट्रिब्यूनल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में आएंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में आए हैं कि हमारे पास मुकम्मल फॉर्म 45 जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमने जुडिशल हिस्सा बना दिया अब रिकॉर्ड का। उसके मुताबिक हमारा फॉर्म 47 जो है वो मुरतब किया जाए और कोर्ट ने 15 के लिए RO का रिकॉर्ड समेत तलब कर लिए। 15 को ये समाअत होगी इंशाल्लाह। 15 को रिटर्निंग ऑफिसर्स को जवाब समेत तलब कर लिया गया या जवाब उनसे मांग लिया गया, वो अपना जवाब जमा करवाएंगे। उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि क्या इन लोगों के प्लीड या इन लोगों का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहावलपुर में आज अब तक जो केसेस लगाए गए वो 5 हमने आपको तफसील दे दी है। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुल्तान में भी निमोनिया के कारीवार जारी हैं। निमोनिया से मुतासरा बच्चे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो रहे हैं। 8 बच्चों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। निमोनिया के बायस एक बच्चा जान की बाजी हार गया। मजीद बताएंगे बिलाल नियाजी। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा निमोनिया के हवाले से। जी बिल्कुल, नमूनिया के बायस जारी हैं और नमूनिया के बायस रोज़ाना के हिसाब से मरीज़ों की तादाद में इजाफा भी हमें देखने को नजर आ रहा है। मुल्तान की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान के चिल्ड्रन कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में तकरीबन 6 बच्चे लाए गए हैं जो कि नमूनिया से मुतासरा थे और उनको वहाँ पर एडमिट किया गया, जबकि 8 बच्चों को सेहतयाब होने पर जो वार्ड से डिस्चार्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बच्चा जान की बाजी हार गया जो नमूनिया के बायस चिल्ड्रन
चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में जेर इलाज था। अगर हम इस वक्त की सूरत-ए-हाल की बात करें तो मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की वार्ड में 69 बच्चे जेर इलाज हैं, जो कि निमोनिया के बायस वहाँ पर लाए गए और उनका वहाँ पर इलाज जारी है। अगर हम 1 जनवरी से लेकर अब तक के सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करें तो निमोनिया के बायस 48 बच्चे हैं जो कि जान की बाजी अब तक हार चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जो वहाँ पर बच्चे ज़ेरे इलाज हैं उनका इलाज जारी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तमाम तर अद्वियात हॉस्पिटल में मुयस्सर हैं और जो बच्चे हैं उनका बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स वालिदैन से भी अपील कर रहे हैं कि बच्चों का ख्याल करें, बच्चों के हिफाजती इंजेक्शन बर वक्त लगवाया करें और उसके साथ साथ सर्दी से भी बच्चों को बचाएं। जबकि डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि गुज़िश्ता हफ्तों की निस्बत जो नमूनिया के से मुतासरा बच्चों की तादाद में कमी तो आई है, लेकिन रोज़ाना के हिसाब से 8 से 10 इसी हिसाब से जो बच्चे हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में लाए जा रहे हैं। जी फिलहाल नियाज़ी, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात 2024 की बात करें तो इलेक्शन में नाकामी पर मुल्तान मुजफ्फरगढ़ डीजी खान के 40 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मुल्तान से आजाद उम्मीदवार NA 186 डीजी खान महर सज्जाद छीना का अदालत से रुजू। PP 291 डीजी खान से फहीम सईद चंगवानी ने भी धांधली का इल्जाम आयद कर दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, इलेक्शन में नाकामी पर मुल्तान मुजफ्फरगढ़ डीजी खान के 40 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। मुल्तान से आजाद उम्मीदवार NA 186 डीजी खान महर सज्जाद छीना का अदालत से रुजू। इस पर महर इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। महर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? मुल्तान से इस वक्त तक 40 जो मुख्तलिफ दरखास्तें हैं मुल्तान हाई कोर्ट बेंच के सीनियर जज जस्टिस अदालत में दायर हो चुकी हैं और इन पर जो वकला की बहस है, वकला के जो दलाइल हैं वो भी हो चुके हैं और दीगर दरखास्तें दायर करने का सिलसिला भी जारी है। जबकि जो दायर हो चुकी हैं उन फैसले महफूज किए गए हैं जो कि आज सुनाए जाएंगे मुतवक्के तौर पर। अगर हम बात ने 148 से बैरिस्टर तैमूर में किया है, PP 219 से हारने वाले मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अख्तर मलिक हैं, उन्होंने ये दरखास्त दायर कर रखी है। PP 218 की बात भुट्टा हैं, PTA के आज़ाद उम्मीदवार हारने वाले हैं, उन्होंने सलमान जीतने वाले थे, उनके खिलाफ ये दरखास्त दायर कर रखी है। और जो इलेक्शन कमीशन RO जो उनमें फरीक बना रखा है। मुल्तान के अलावा अगर हम DG खान की बात करें तो DG खान मुजफ्फरगढ़, इसमें इसके अलावा मियाँ चन्नू, विहाड़ी के साथ ही दीगर जो इलाके हैं वहाँ से भी तकरीबन 46 उम्मीदवार इस वक्त तक जो उन्होंने दरखास्तें दायर की हैं। उनके नामों की अगर बात की जाए तो अखलाक अहमद हैं, 287 हैं, PTI के आज़ाद अहमद हैं, आज़ाद जो उम्मीदवार थे इसी 184 DG खान से थे, 291 हैं, 184 मोहम्मद खलोल हैं, इसी तरह फरद अब्बास हैं, इसके ताफी उन्होंने भी दायरा का यूनिस हैं जो कि मेंबर पंजाब बार भी हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट रुजू कर रखा है। खान से PTI के आज़ाद उम्मीदवार मलिक इकबाल साकिब हैं, उन्होंने भी कोर्ट से दायर कर रखे रुजू कर रखा है। और PP 272 से सुल्तान बासिर सुल्तान बुखारी हैं। इनके साथ दीगर उम्मीदवारों की बात करें, मोहम्मद यूनिस हैं, इसी तरह सजाद हुसैन हैं, उसके मखदूमजादा सैयद बासित अहमद हैं, इसी तरह वहीद असगर हैं। ये 40 जी महर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब के 46 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया।